mission. Teach is the core thrust area of India Literacy Mission. T stands for teacher support. NBA is the part of teacher support like Nation Builders Award. E for e-learning, A for adult literacy, C for child development, and H for happy schools. So today we are talking of NBA only specially. So recognize the outstanding teachers with Nation Building Award. What is the basic purpose of this award? We must felicitate the outstanding teachers, train the teachers. This is another very important area. And TTP, Teachers Training Partnership. When we are conducting this survey and all those, sometimes we are felicitating the best teachers, but what about those who are not receiving the award for the first time? Can we train them? Yes, we can train them. If we can train them, can they perform better? Yes, they can perform better and they can be still felicitated. So that is the purpose of TTP. For this, we require various forms. I'll share these forms afterwards with all of you. Use NB 1.2. 2.2, here NB stands for Nation Builders. Fill NB 3.2. It is nowadays called as compilation sheet for NBA online. And NB 4.1, which is very essential, which is called as project upload form. To download these forms, directly you can click the link shared in the presentation, which is, let's say, supportive for directly clicking, and you can directly reach on the relevant site, or otherwise, these forms today I'll share in the group so that they can be along with this presentation. I'll share this presentation too in the group so that this can be forwarded. And this is probably I tried my level best to make very simplified presentation. So kindly remember, NB stands for Nation Builders. Forms are 1.2, 2.2, 3.2, and finally 4.1. When we visit the schools, what is the prior need for giving these awards? Take minimum 10 printouts for NB 1.2, one of NB 2.2, at least one of 3.2 per school. This 3.2 is called as compilation sheet for NBA. When we visit our RILM site, so latestly it has been designated as compilation sheet for NBA. And prior we visit the school, we must read and we must understand what are the contents of this form. Unless and until we clearly understand what are the contents, then it will be a challenge for us how to go ahead. Now, what is the procedure? Let's understand. Processes are very simple. First of all, we must select the school like government or aided school, Zilla Parishad school, Gram Panchayat school, or any municipal school. One caution has to be taken. While selecting the school should have UDISE number, UDISE, that is school ID. It stands for Unified District Information System for Education. So again, I am repeating, this is very important. Schools should have the IDs that is called as UDISE number, UDISE number, that is mandatory. Procedure, first of all, very easily we can visit the school's principal and authority, randomly select 10 students or ask the school principals or authority to take the benefit of their previous experience with respect to students. So select 10 students and we must help them out to fill up the form called as NB 1.2. Here, very good process has been implemented by RILM. Students are evaluating the teachers because there should be certain criteria to give the award. So students are evaluating the teachers on the basis of various attributes. I'll share NB 1.2 as well as 1.2.2 as well as 3.2 final sheet also in this presentation. Ask students to 10-point scale. 10-point scale means rating has to be given from 1 to 10 per attribute. Calculate average A. Okay. Somebody's voice is there. Am I audible? Yes. Okay, fine. Yeah. Okay. Yes, please. Calculate the average A. Average A means divide total A by number of students for each student, for each teacher. Then go ahead with NB 2.2.
This has to be filled up by principal and head teacher of the school along with the signature and stamp. Along with the signature and stamp. This is very important. Now, I'm just trying to share something over here. Screen is visible now? Yeah? Yes, yes, yes. Okay, I'm sharing now this sheet 1.2. Look over here, it is very simplified. Rotary inner wheel or Rotaract club of so and so, whoever are the representatives, district, date, etc. Name of the person filling this form, name of the school, address of the school. And Manojji, we can see the PPT and not the form right now. Okay, fine. Okay. What I thought ki simultaneously if I could explain those. Anyway, fine. Let me go ahead with this. This NB 2.2 has to be filled up by principal, head teacher of the school along with signature and stamp. Next part of the procedure. Use the data that is called as compilation of the data from NB 1.2 as well as NB 2.2. NB 2.2 is being filled by respective school heads or principals and taking the average of those scores in NB 3.2. NB 3.2 sheet is very important. The final scores scored by the teachers or the whatever the marks are recorded, those are to be uploaded. That's why this is very important sheet. So NB 3.2, again important question, has to be signed by Rotary Club member, school head or principal of the school. And here, who is the awardee? The teacher scoring highest marks will be selected for Nation Builders Award. So NB 1.1, another is 2.2, compile the data from 1.1 and 2.2 into 3.2. And after compilation, there should be signatures of head of that school as well as the respective Rotary Club member. And this sheet has to be uploaded. Let's have what is the purpose of uploading this 3.2. When we upload this project details in the form of NB 3.2 online, the site is over here. Link is also being directly shared. If we click this link, directly we move on that site and we can go ahead with the process. So when we upload this NB 3.2 online, then we are in a position to download Nation Builder Award certificate. This certificate has to be printed from us on a very good quality size A4 paper, 250 probably or preferably 300 GSM. The papers should be of good quality. These certificates can be distributed in terms of various awards along with the certificate at a special function. This function can be organized by club or enclave or even the district. When we go ahead with all this process, final most important step, upload this Nation Builder Award ceremony along with the pictures of the projects like photographs, etc. Project report compiled in the form of NB 4.1. Now it is called as project upload form for recognition certificates. Definitely there are recognitions for clubs as well as district. Star Club who involve 5 schools, awarding 5 teachers, 1 from each school. Superstar School, 10 schools are to be involved, award 10 teachers, 1 from each school. Megastar Club, 15 schools, 15 teachers, 1 from each school. Supreme Star Club, involve 25 schools, award 25 teachers, 1 from each school. And finally, Sovereign Star Club, involve 50 schools, award 50 teachers, 1 from each school. Now, the idea behind this is like all the teachers should not be selected from a single school. Suppose we are having, sometimes the question might come, how many number of teachers we can select from a school? As per the guideline, if we are going ahead with the survey of 15 or more teachers, then we can definitely go ahead with 2 teachers from a school. But it is supposed and proposed that from a school, 1 awardee, so that there will be maximum participation from various schools, and we should come across variety of sections of teachers as well as number of schools. So I had just tried to present this in very much simplest form. That's the presentation from my side with respect to the procedures. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Manoj, for the
elaborate the NBA function. Now I request to Rotarian Rajesh Pardeshi for how to practically implement NBA. Rajesh ji, are you there? Yeah, am I audible? Yeah, loud and clear. Yeah. चलो सभी को रोटरी प्रणाम। तो फ्रेंड्स, जैसा मनोज जी ने कहा कि नेशन बिल्डर अवार्ड है, तो किस तरीके से नेशन बिल्डर अवार्ड को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसे हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कुछ चैलेंजेस हमारे सामने जरूर है, उस पर भी हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो है, जो हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं, वो ये है कि जो स्कूल के जो अथॉरिटीज है, एवरीबडी डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली। सबसे पहले जो हमारा जो स्कूल लेटर का जो फॉर्म है, दैट शुड बी इन मराठी। तो इसके लिए मैंने एक मराठी में भी एक फॉर्म बना के रखा है, बराबर है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि जब हम प्रैक्टिकली किसी स्कूल में जाते हैं, तो जो स्कूल के जो प्रिन्सिपल्स है वो खुद हमसे कहते हैं की सर अडचण आहे, काही शिक्षकांना हे समजणार नाही किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम है। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है अपने को, है ना, एक तो दो फॉर्म्स है, एक फॉर्म नंबर 1.2 which has to be filled by the students and another form that is 2.2 which has to be filled by the principal or the head teacher। तो इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया है, जैसे टीचर का क्राइटेरिया होता है, तो जिसमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो 7 पॉइंट्स को भी हमने मराठी में ट्रांसलेट किया हुआ है, so that each and every school will be able to understand, कि अच्छा आसानी से वो समझ सके कि ये क्या क्राइटेरिया है, टीचर को अपने को जो पॉइंट्स देने हैं वो किस लिहाज से देने चाहिए, व्हाट शुड बी द मेन क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड व्हाइल गिविंग द अवार्ड। सेकंड प्रॉब्लम इज विद द स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है, अब स्कूल में ऐसा होता है कि कौन से 10 स्टूडेंट को हमने चुनना है, तो अपने को ये उनको जाके ये बोलना पड़ता है कि विच एवर ऐसे जो स्टूडेंट्स है, आपके जो होनहार है, रेगुलर है, क्लेवर है, अटेंटिव है, ऐसे स्टूडेंट्स को ये दे शुड बी सिलेक्टेड फॉर गिविंग द मार्क्स, बराबर है। एंड दिस प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोसेस एनोनिमस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट को नहीं मालूम होना चाहिए कि अपन ने किसी दूसरे स्टूडेंट को या दूसरे स्टूडेंट ने कितने मार्क्स दिए ये टीचर को। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि स्कूल का भी एक रेपुटेशन होता है, वो भी चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, बराबर है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, चेक विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या कैन यू सी दिस स्क्रीन? सबको दिख रही है स्क्रीन सर? ये यस ओके। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी हम ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड करना है ऑन RILM वेबसाइट, बराबर है। तो सबसे पहले कोई भी एक जो सर्च इंजन है, इट कैन बी बिंग या गूगल, कोई भी सर्च इंजन पे जाके सबसे पहले, अभी किसी को फुल एड्रेस मालूम नहीं होगा तो दे शुड प्रेस, मतलब उन्होंने टाइप करना चाहिए रोटरी टीच NBA लॉगिन, बराबर है। जब हम ये एंटर करते हैं, जब भी ये गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो हमारे सामने एक फर्स्ट लिंक ओपन हो जाती है, RILM नेशनल अवार्ड लॉगिन स्क्रीन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लॉगिन क्रेडेंशियल्स। हर क्लब के जो करंट प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, उनका लॉगिन हो सकता है, या फिर कुछ क्लब्स ऐसे भी होंगे जिनका लॉगिन नहीं रहेगा। ओके, अगर किसी का लॉगिन नहीं है तो दे कैन रजिस्टर फॉर दिस। जैसे अपन ये वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया तो ये स्क्रीन अपने सामने आती है। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सर दिख रहा है ये सभी को? यस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स का मतलब है सिंपल फॉर्मेट में आपका एक ईमेल एड्रेस है जो आपने रजिस्टर करते समय ये टाइप किया होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव अ पासवर्ड। एक पासवर्ड है जो हम उस समय क्रिएट करते हैं। अगर किसी का मान लो नहीं है, किसी क्लब के पास हो सकता है उन्होंने किसी ने लॉगिन नहीं किया हो, तो ऐसा इस सिचुएशन में यू कैन रजिस्टर फॉर इट। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर। ओके,
अगर मान लो किसी क्लब का नहीं है, हम ये मान के चलते हैं, तो हम रजिस्टर पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे रजिस्टर के ऊपर जाते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। से फॉर एग्जांपल इट्स 3030, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 3030 है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, रोटरी डिस्ट्रिक्ट, देन यू कम अक्रॉस द डिफरेंट क्लब्स। तो इसमें से अपना जो भी क्लब है वो क्लब हम चुन सकते हैं। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल द क्लब्स, बराबर है। तो जिसका जो भी क्लब है वो क्लब, मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक क्लब ले लेता हूं, एंड देन सिलेक्ट द स्टेट। जिस स्टेट का है तो स्टेट हम यहाँ पे चुन सकते हैं, वॉट एवर इज द स्टेट। जैसे महाराष्ट्र का लिया, एंड देन जो भी लॉग इन करना है तो उनका पर्टिकुलर नेम, जो भी क्लब का मेंबर है वो कोई भी हो सकता है। वो इट कैन बी अ लिटरेसी कमिटी चेयरमैन या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, या कोई भी क्लब का जो मेंबर है वो अपनी क्रेडेंशियल्स डालेगा। ही हैज टू रजिस्टर, ही और शी, नेम के साथ। उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस, ये जो ईमेल एड्रेस रहेगा दैट विल बी द लॉगिन आईडी, वो रहेगा लॉगिन आईडी, ठीक है। ये हम ईमेल एड्रेस डालेंगे। देन वी शुड हैव एंटर मोबाइल नंबर। एक सिंपल फॉर्म है जिसमें ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर हम 2 बार पासवर्ड डालते हैं। जो भी पासवर्ड हमें क्रिएट करना है, यू हैव टू एंटर दैट पासवर्ड, ओके। तो जब भी हम ये पासवर्ड डालेंगे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर। तो जैसे हम रजिस्टर करें तो आपका एक लॉगिन सर आवाज नहीं आ रही है। हैंग हो गया क्या? यू आर नॉट ऑडिबल। Rajesh sir, you are not audible. Rajesh ji, you are not audible. You are visible but not audible. Yeah, is the screen visible? Yeah. No, I was having some network issues, तो फिर से connection drop हुआ था. It's visible to all of you? Yeah. यस यस यस। तो यहाँ पे सर हमें डालना है अपना जो भी हमने लॉगिन आईडी क्रिएट किया था, वो आपका ईमेल एड्रेस, एंड देन यू हैव टू एंटर द पासवर्ड हियर। जैसे हम ये पासवर्ड और ये डालते हैं एंड वी क्लिक ऑन लॉगिन, हमारे सामने वो स्क्रीन आ जाता है। देखो, यू गेट दिस स्क्रीन। यहाँ पे दिया हुआ है नेशन बिल्डर अवार्ड 2022-23, जो करंट ईयर है। करंट ईयर में अपना अवार्ड, वो स्क्रीन यहाँ पे दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अपडेट योर क्लब प्रेसिडेंट। जो भी अपना क्लब प्रेसिडेंट है वो क्लब प्रेसिडेंट हमें उसमें अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट के करंट प्रेसिडेंट सुनील सिकवानी है, तो अपन ने उनका नाम डाल के वो अपडेट किया। कई बार हमारा पुराना लॉगिन होता है और जब हम उस समय के प्रेसिडेंट जो भी होते हैं तो वो हमें इसमें अपडेट करना जरूरी है, बराबर है। तो वी नीड टू इन्फॉर्म द क्लब मेंबर्स कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सबसे पहले हमसे पूछेगा कि आपका ये जो है वो अपडेट कीजिए, क्लब प्रेसिडेंट शुड बी अपडेटेड, ओके। और वो सब होने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द एक्चुअल प्रोसेस। इसके लिए यहाँ पे ऐड टीचर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। हम जैसे ही हम ऐड टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल कम अक्रॉस दिस स्क्रीन। देखो यहाँ पे एक स्क्रीन हमारे सामने दिख रही है। ये जैसे अभी कुछ स्कूल्स अपन ने ऐड किए हुए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मनोज जी ने भी कहा, यूडाइस नंबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन उसका फुल फॉर्म है, बराबर है। तो जब भी हम स्कूल्स के अंदर जाएंगे तो स्कूल्स वालों से सबसे पहले ये कहना है कि आपका यूडाइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके हम कुछ भी रजिस्टर नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हमें यहाँ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस ये चल रहा है, इसके अंदर स्कूल का नाम है, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो अभी यहाँ पे एक एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक जो टीचर है तो टीचर का नाम यहाँ पर आएगा, एंड मार्क्स अवॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट टू दैट टीचर।
हर स्टूडेंट ने टीचर को जो भी मार्क्स दी है उनकी टोटल मार्क्स है, बराबर है। जैसे दो कंपाइलेशन शीट है, सॉरी दो शीट्स है, एक फॉर्म 1.2 है और एक फॉर्म 2.2 है। 1.2 जो फॉर्म है वो 10 स्टूडेंट ने भरना है फॉर ईच टीचर। हर टीचर ने नॉमिनेट किया है उनके मार्क्स उनकी टोटल होगी, ओके, दैट वी कॉल एज ए। एंड देन जो प्रिंसिपल है या जो हेड टीचर है उन्होंने हर टीचर की जो भी मार्क्स दी है ये दोनों टोटल ऐड होते हैं, दैट वी कॉल एज बी। और ए और बी की जो भी टोटल होती है और वो टोटल फिर हमें यहाँ डालनी होती है, बराबर है। और तब जाके ये फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ हर स्टूडेंट के मार्क्स दिए। अगर मान लो आपने कुछ मार्क्स डालते हुए समझो कोई गलत मार्क्स डाले, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ एडिटिंग इट। आप यहाँ से कुछ हद तक उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज एडिट नहीं होती जो मैंने मार्क की है कि नेम ऑफ द स्कूल जो है वो स्कूल का नाम सही डाले जाना चाहिए, बराबर है। टीचर का नाम हम कुछ हद तक एडिट भी कर सकते हैं या मार्क्स एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का नाम जो है दैट शुड बी प्रॉपर। तो ये थोड़ा सा हर रोटरी क्लब्स को मैसेज जाना चाहिए कि जब भी आप ये डालते हो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक टीचर का नाम डाला हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये कि हर स्कूल का कम से कम 2 टीचर नॉमिनेट होना जरूरी है, एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, बराबर है। यानी हर जस्ट 1 सेकंड प्लीज म्यूट। ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा, बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं कोई तो इसलिए ये नहीं सुनता तो उसका किसी का आईफोन है। मेरे को लगा था तेरे को यही लगेगा। मैं तो कुछ नहीं चलाई थी। मैं समझ गया था जब हाँ बोलिए मैम। इसको लगा आवाज आ रही है, कोई आईफोन है। पता नहीं किसी का आ रहा है मैम। प्रसाद भाई दोनों किसी पार्टिसिपेंट के यहाँ से आवाज आ रहा है। Rakesh, you can take the control. You can just keep unmute Rajesh. आप होस्ट हो गए तो आवाज कैंसिल कर दो ना, जो होस्ट होगा ना वो म्यूट। मैडम एक काम करो, अब यू अनम्यूट एवरीबडी, सिवाय मेरे आप सभी को अनम्यूट करो, मतलब फिर आवाज ही आएगा। ओके, तो शाला कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कर सकता हूँ? या प्लीज कैरी। ओके, तो जहाँ पे जैसे हर स्कूल में एक ही टीचर नहीं चलेगा, अपने को कम से कम 2 टीचर लगेंगे तभी वो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो पाएगा। ओके, तो एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे अगर टीचर 1 अपन है तो यहाँ पे फिर अलग से टीचर 2 का नाम आएगा। ओके, वॉट एवर द नेम ऑफ द टीचर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, ये एजुकेशन की कोई क्लास शुरू कर रहे हैं उसके बारे में। जब भी हम टीचर का नाम डालते हैं उसके साथ ही टोटल भी हमें डालना है ना। जो फॉर्म 2.2 में हर प्रिंसिपल या हेड टीचर ने हर टीचर के लिए जो टोटल मार्क्स दिए अलॉट किए हुए वो हमें डालना है यहाँ पे। एग्जांपल मान लो 60 दिए। ओके, इसमें यू कैन सेव द टीचर। जैसे अगर हम सेव टीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दैट सेकंड टीचर विल बी एडेड। एक टीचर पहले से था और मैंने सेकंड टीचर ऐड किया। ओके, नाउ ये टीचर हम जितने भी टीचर स्कूल ने नॉमिनेट किए हुए मनोनीत जिसे हम बोलते हैं वो किए, उसके बाद फिर स्टूडेंट के मार्क्स डाल सकते हैं। तो यहाँ यू सी दिस ऑप्शन एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स। ओके, तो जैसे हम स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टीचर के जो भी टीचर्स हमने ऐड किए हुए हैं उनके सभी के नाम दिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक, जैसे अपन ने टेक्स्ट अभी सेकंड टीचर लिया, अभी एक डमी टीचर अपन ने ऐड किया हुआ है। नाउ जैसे हम टीचर का नाम सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड यू विल गेट द टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे स्टूडेंट 1 के मार्क्स हमें डालने हैं। मतलब ये प्रोसेस इतनी इजी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 55 डाल दिए, एंड एज सून एज यू प्रेस दिस बटन, जब आप सेव मार्क्स के ऊपर क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली वो सेकंड स्टूडेंट के बारे में पूछेगा। मतलब कंपाइलेशन शीट अगर आपकी रेडी है तो फिर आपको मार्क्स डालने में थोड़ा आसान हो जाता है काम। ओके, ऑटोमेटिकली वो कर्सर भी वहीं पर ले जाता है। जैसे अपन ने फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स डाले और उसके बाद सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स डाले। एग्जांपल मान लो मैंने 45 डाल दिए। तो इसी तरीके से हमें सेव करते जाना है आगे आगे प्रोसीजर। ठीक है, और जब हम ये प्रोसेस पूरी करते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड करके आता है।
अगर हम फाइनल हो गए, हमें ऐसा लगता है कि सभी टीचर्स हमने ऐड कर दिए और सभी स्टूडेंट टीचर्स के लिए स्टूडेंट के मार्क्स भी डाल दिए, यू गेट द टोटल ईयर, बराबर है, यहाँ सभी टोटल आ जाती है। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन प्रोसीड, अब ये अधूरा है, लेकिन अधूरा होने पर भी देखो एक फर्स्ट टीचर के मार्क्स ज्यादा है तो एक डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। अब ये डाउनलोड में टीचर का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके साथ एक कवरिंग लेटर भी आता है, यानी जो हम स्कूल में दे सकते हैं कि हमने आपके टीचर को ये अवार्ड दिया। मैं बता सकता हूँ आपको, डाउनलोड कवरिंग लेटर, देखो इस तरीके से हम कवरिंग लेटर डाउनलोड करते हैं। ये आ रहा है कवरिंग लेटर, देखो यहाँ पे जो हर क्लब के जो लेटर हेड के ऊपर यू कैन प्रिंट दिस एंड गिव इट टू द स्कूल, मतलब जो स्कूल जो है वो स्कूल को ये पता चलेगा कि रोटरी इंटरनेशनल ने इस तरीके से आपके एक टीचर को इवैल्यूएशन सिस्टम के जरिए फेलिसिटेट करने का ये प्लान बनाया हुआ है। मतलब ये प्रोग्राम लेंगे हम, उस प्रोग्राम में ये इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। तो स्कूल विल हैव अ कॉन्क्रीट रिकॉर्ड कि किस तरीके से नेशन बिल्डर अवार्ड इस साल में अपने किस टीचर को दिया गया। तो ये एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको एक सर्टिफिकेट का भी एक सैंपल बताता हूँ। जैसे अभी ये सभी टीचर्स के अपन ने किए, यहाँ पे राइट साइड में ये जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जैसे मान लो आपके 5 टीचर्स हैं, अब 5 टीचर्स में से सिर्फ एक ही टीचर जिसके ज्यादा मार्क्स है उसके सामने ही आपको ऑप्शन दिखेगा टू डाउनलोड, एक ही स्टूडेंट का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो पाएगा। जैसे अब यहाँ देखो ये दिख रहा है अभी यहाँ पे ये 4 टीचर्स है, तो ये बाकी टीचर्स के जो है वो मार्क्स कम है, तो सिर्फ जो हाईएस्ट मार्क्स जिस टीचर को मिले ओनली दैट सर्टिफिकेट विल बी डाउनलोडेड। जैसे अभी ये डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ही सेकंड के अंदर आपके सामने वो NBA जो नेशन बिल्डर अवार्ड का जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है। सी दिस इज द प्रोसेस, ये फाइनल प्रोसेस है। ये आने के बाद A4 साइज में यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। A4 साइज में प्रिंट आउट ले सकते हैं 250 या 300 GSM पेपर के ऊपर, एंड देन आप उसको फ्रेम कर लो, और फ्रेम के साथ साथ जो नेशन बिल्डर अवार्ड का जो एक प्रोग्राम आप रखने वाले क्लब लेवल पे, इट कैन बी ऑन टीचर्स डे और इट कैन बी जैसे मेरे ख्याल से राकेश जी ने कहा कि एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, बराबर है। तो ये हम वो अवार्ड दे सकते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स टीचर्स जो है वो वी कैन फेलिसिटेट देम। ओके, तो ये इस तरीके से ये सर्टिफिकेट और कवरिंग लेटर ये हम स्कूल को दे सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल तरीका है ये सब इम्प्लीमेंट करने का, और वी कैन इम्प्लीमेंट इन दिस फैशन, बराबर है। तो सबसे पहले एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने के बाद एक सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसे कहा कि स्कूल का फीडबैक लेना और वो जो प्रोसेस है वो थोड़ी क्यूम्बरसम है। और जैसे आनंद जी ने कहा था कि मैक्सिमम अगर ये वर्क अगर डिवाइड होता है मेंबर्स के अंदर तो ये काम हम ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम टीचर्स कैन बी फेलिसिटेटेड बाय दिस सिस्टम। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि रोटरी के ऊपर अराउंड 36,000 से ज़्यादा टीचर्स अब तक फेलिसिटेट किए गए हैं। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स कितने अपलोडेड हुए वो भी यहाँ डैशबोर्ड पे दिखता है। करंटली इट्स 1311 प्रोजेक्ट्स अपलोड किए गए हैं। तो एट एनी टाइम यू कैन सी दिस डैशबोर्ड, और किसी स्कूल के अगर ये है तो हम यहाँ वो डाल सकते हैं। और कोई स्कूल ऐड करनी है तो सिंपल प्रोसीजर है, ऐड स्कूल। जैसे हम स्कूल ऐड करेंगे तो सबसे पहले स्कूल का यूडाइस नंबर हमें डालना जरूरी है। ओके, और उसके साथ साथ स्कूल का फुल नेम, दैट स्कूल कैन बी अ प्राइमरी स्कूल और एन एलिमेंट्री स्कूल, कोई सेकेंडरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल हो सकती है, वो भी मेंशन करना जरूरी है, जो कि हमारे फॉर्म्स पे भी दिया हुआ है। पर ये ऑब्जर्व किया मैंने कि कुछ स्कूल वो चीजें डालते नहीं है, मतलब अब जब उनसे फॉर्म लेते हैं तो थोड़ा सा हमें कम्युनिकेशन उनसे बढ़ाना पड़ता है। एंड स्कूल का जो टाइप है वो गवर्नमेंट एडेड है और ZP है या ग्राम पंचायत है या म्यूनिसिपल स्कूल है, ये सब डेटा डालने के बाद स्कूल फीड हो जाती है, स्कूल सेव करते हैं हम, एंड देन उसके बाद फिर हम टीचर्स ऐड करते हैं और फिर उनके मार्क्स डाल के
स्टूडेंट के मार्क्स डालते हैं। इस तरीके से हम नेशन बिल्डर अवार्ड का जो प्रैक्टिकल वे है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। हाँ, हेलो राजेश जी। हाँ हाँ सर। आई एम फ्रॉम मालेगांव। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नॉन ग्रांटेड स्कूल जो है ना उनको अवार्ड नहीं मिलता। ओके। दूसरी बात है कि अभी मैंने वो जो सब पढ़ा तो उसमें क्या एक्चुअली आई एम द लेक्चरर प्रोफेसर सीनियर कॉलेज। तो सीनियर कॉलेज के लिए और जूनियर कॉलेज के लिए जो रहते हैं ना वो टीचर भी वो डिवोटेड रहते हैं। हाँ। तो उनके लिए भी अपना जो क्राइटेरिया है उसमें तो नहीं है। उससे क्या बोला कि प्राइमरी सेकेंडरी एटलीस्ट 11-12 तक। आफ्टर दैट सीनियर कॉलेज जो है यूजीसी ग्रांटेड जो रहता है क्या नॉन ग्रांट कॉलेज जो रहेगा उनके लिए भी ऐसा लगता है मुझे, मेरा सजेशन है अपने डीजी जो होंगे क्या अपनी जो कमेटी होगी तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि ये जो नेशन बिल्डर अवार्ड है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद बहुत से जो बच्चे तो वो क्या करते हैं कि वो कलेक्टर बनते यानी कि वो जो हायर एजुकेशन में जाते हैं वो जो टीचर रहते हैं ना उनके लिए भी रहना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल 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 आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। मैंने जैसा बोला ना कि स्कूल में हम जब जाते हैं ना तो कई स्कूल में देखा है अपन वी शुड हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड। हमारा बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड है, बीइंग अ रोटेरियन हम सब पॉजिटिव है। लेकिन प्रैक्टिकली ये जो देखा है कि ये जो अपन बोलते हैं ना एंथुजियाज्म होना चाहिए, दैट वी डोंट सी। अब जैसे मैं करीब 40 स्कूल्स मैंने अप्रोच किए और आउट ऑफ 40 स्कूल्स आई एम गेटिंग द इवैल्यूएशन फॉर्म्स फ्रॉम 10 स्कूल्स अप टिल नाउ। अभी 3-4 दिन हो गए उस प्रोसेस में। तो बहुत ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है एंड देन दे हैव डिफरेंट रीजंस कि थोड़ा ये भी काम है वो भी काम है और कैसे करना। और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि आप कभी भी कॉल कीजिए। मैंने बहुत सारे अभी आप मैं टाइम कंस्ट्रेंट इसलिए मैं वो लेटर्स नहीं शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज आई हैव ऑल द डेटा कि उनको आसान करने के लिए हमने और भी आसानी से इन नेटिव लैंग्वेज में वो सब चीजें भी हमने बनाई सो दैट स्कूल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंफर्मेशन फ्रॉम द स्कूल। बराबर है, सबसे पहला फॉर्मेट ये होता है कि आर यू रेडी फॉर दिस। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम आप रेडी नहीं हो, हम ही जबरदस्ती देना चाहते हैं। ये नहीं लगना चाहिए उनको एज इफ वी आर जस्ट बहाल कर रहे हैं हम उन्हें, है ना। उसका इंपॉर्टेंस जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि भाई रोटरी इंटरनेशनल का इट्स अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, बराबर है, एंड योर स्कूल टीचर इज गेटिंग इट, बराबर है। तो आपसे भी एक दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट है कि आप उसका इंपॉर्टेंस समझे, बराबर है। और जो इवेल्युएशन सिस्टम है वाकई बढ़िया दी है। द ओनली थिंग इज वो कैसे इंप्लीमेंट होती है। देखो कहीं ना कहीं लूप होल्स है हर सिस्टम के अंदर। और जैसा आपने कहा हायर एजुकेशन के लिए तो डेफिनेटली आनंद जी भी है तो दे कैन गो फॉर इट आगे अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो इट्स अ वेलकम स्टेप, बहुत अच्छी बात रहेगी ये सब। हेलो, आई एम पूनम मानुधने फ्रॉम जलगांव रोटरी क्लब। हेलो। हाँ, मेरा ऐसा कहना था कि अपन प्राइमरी सेकेंडरी जेडपी एडेड और नॉन एडेड जो भी स्कूल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल स्कूल्स है फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन स्पेशली ब्लाइंड स्कूल्स भी है या ब्लाइंड स्कूल्स है, देन फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डीफ एंड डम स्कूल है, मेंटली रिटार्डेड स्कूल्स जो है ये लोग गवर्नमेंट एडेड भी होती है और मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट गवर्नमेंट एडेड। लेकिन उन टीचर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, डिवोशन बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो कैन वी नॉट गिव अवार्ड्स टू सच टीचर्स? सी रोटरी के प्लेटफॉर्म से इस मीडियम से नहीं दे सकते, बट यू कैन गिव अवार्ड टू एनीबॉडी। हम कई सालों से हमारा क्लब भी ये अवार्ड देते आ रहा है, बराबर है। हम भी दे रहे हैं लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। हाँ, we have a criteria of that UDICE number should be there, then the types of schools जो है वो उस फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर रोटरी इंटरनेशनल वो चीज भी इम्प्लीमेंट करता है कि प्राइवेट एडेड और सच ऐसे जो स्पेशल स्कूल्स है अगर दे सके तो इट्स वेल एंड गुड। तो आनंद जी है वो दे कैन बेटर आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। हाँ, संगीता जी। थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जिस तरीके से प्रैक्टिकली हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो सबको शायद समझ में आया ही है। और जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो नॉन ग्रांटेड स्कूल्स है जिनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए,
तो जिस तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमारे जो डीजी हैं आनंद जी, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर हम इस तरीके का अगर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि सच में जिस तरीके से क्वेश्चंस अभी पूनम मैडम ने भी जो बोला है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ इस तरीके से अवार्ड भी अगर देते हैं और इस तरीके का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि शायद 2 साल पहले ही इस तरीके से हमने अवार्ड डिस्ट्रिक्ट में दिए थे, और इस साल से अगर अपन प्लानिंग करते हैं तो उस तरीके से बहुत सारे टीचर्स है कि जो डेडिकेटेड टीचर्स है, बट वो ग्रांटेड स्कूल में काम नहीं करते, तो इन लोगों को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में आनंद जी ही बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आनंद जी आप हो? Is there उनका माइक और वीडियो? ओके संगीता जी, तो पर्सनली हम बात करके इस पे क्या डिसाइड होता है, फिर हम ग्रुप में शेयर करेंगे उस बारे में। तो एक अलग तरीके से अपन कर सकते हैं, लेकिन जो एनडीए में जो है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से हम नहीं, वो तो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जो है उसके हिसाब से तो हमें चलना ही है। इसके अलावा जो अदर जिस तरीके से पूनम जी ने क्वेश्चंस किए, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। जैसा प्लानिंग अगर हम करते हैं तो अलग लेवल से हम कुछ आनंद सर से बात करके उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। हमारे बीच में हमारे जो डीजी है और लिटरेसी टीच एडवाइजर आशा जी वेणुगोपाल भी है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि आप भी हम अपने व्यूज रखें और नेशन बिल्डर अवार्ड के लिए हमने किस तरीके से प्रोसीड होना चाहिए, तो प्लीज आप हमें गाइड कीजिएगा। आशा जी। आशा जी, आर यू देयर? Her mic and video is muted. Has to be unmuted. हाँ, अभी दिख रहा है ना? हाँ हाँ, यस बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे इन्होंने बोला, संगीता ने बोला, और इवन द अदर स्पीकर वाज टेलिंग अबाउट अनएडेड स्कूल्स नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, तो इवन आई फील के उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई थिंक RILM से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो कुछ अपना कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। बाकी हमने भी बहुत ये किया है, वी हैव डन दिस प्रोजेक्ट बिफोर, और डेफिनेटली टीचर्स को एक मोटिवेशन रहता है जब उनको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर दिस अवार्ड। तो दिस अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है कि बहुत हमको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो हमको मोटिवेट करना पड़ेगा टीचर्स को और स्कूल्स को, कि ताकि हमको रिस्पॉन्स मिले उनसे। और इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू, आई एम ऑलवेज देयर। कुछ भी आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हो, यू कैन आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प इन व्हाटएवर वे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सारे डिस्ट्रिक्ट चेयर जो है यहाँ पे, सारे जो मेंबर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आशा मैम ने जो हमें बताया है कि जिस तरीके से RI को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जिस तरीके से हमें मतलब हम अपेक्षा करते हैं कि जरूर हम अदर जो स्कूल्स है उनको भी जल्द से जल्द इन्वॉल्व किया जाए। और जिस तरीके से राजेश परदेशी इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से वो स्कूल में जाके अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आपके रीजन के जो क्लब्स है, उनके जो लिटरेसी चेयर है या डायरेक्टर है या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जो भी टीम काम कर रही है, अगर आप उनको स्कूल्स का फॉलोअप लेके, और जो टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो सारे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में अगर आप चाहते हो कि और एक बार मीटिंग होनी चाहिए, उसमें प्रेसिडेंट होने चाहिए, क्लब चेयर होने चाहिए या डायरेक्टर होने चाहिए, हम एक बार और मीटिंग लेंगे अगर आप लोग सब चाहते हैं तो। और राजेश परदेशी सर, इनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपने जो नेटिव लैंग्वेज में जो फॉर्म क्रिएट किए हैं, अगर आप शेयर कर देते हो हमारे साथ, तो सबके लिए वो आसानी हो जाएगी। सारे क्लब्स जो भी मीडियम है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, जो भी मीडियम स्कूल है, उनको आसानी हो जाएगी फॉर्म फिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो नेशन बिल्डर अवार्ड उसके जो व्यूज है वो
रोटरी मनोज जी काबरा और राजेश परदेशी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने रखा हुआ है। हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और जो जो काम करते वक्त प्रॉब्लम आएगी तो हम जरूर उसका सोल्यूशन निकालेंगे और काम करते जाएंगे। और जिस तरीके से ये लिटरेसी मंथ है, तो जरूरी नहीं कि हमने 5 सितंबर को ही करना चाहिए, हमारे पास होल मंथ है, होल मंथ लिटरेसी मंथ भी है और 5 सितंबर भी है। इस जरिए हम पूरा मंथ काम कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो अगर आप प्लानिंग करते हो तो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स ऐसे लगना चाहिए कि पूरी हमारी जो रोटरी इंडिया है उसकी वॉल हमारी लिटरेसी नेशन अवार्ड की फुल दिखनी चाहिए, कि बस हमने डिस्ट्रिक्ट 3030 के कितने अवार्डीज हमने दिए हैं और हमारी जो वॉल है कितनी फुल दिख रही है, हमारे लिए गर्व की बात होगी। अगर हम उस तरीके से काम करेंगे तो हम अपेक्षा करते हैं कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से एकजुट होकर काम करेंगे। अगर आप में से किसी का सजेशन होगा कि इस तरीके से हमने करना चाहिए और आपके पास अगर कोई आइडिया होगी तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा अभी। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो प्लीज आप वो भी पूछ सकते हैं। हाँ संगीता जी, अभी रिसेंटली मकरन जी चांदवड़कर जो है भुसावल रेल सिटी के, उन्होंने अवार्ड दिए, तो मकरन जी आप शेयर कर सकते हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। गुड इवनिंग ऑल, मैं डॉक्टर मकरन चांदवड़कर, प्रेसिडेंट भुसावल रेल सिटी। हमारे क्लब ने अभी परसों ही अवार्ड्स दिए, NBA अवार्ड्स, और जैसा राजेश भाई ने बोला वैसे प्रोसीजर हमने फॉलो किए। वेबसाइट बहुत ही इजी है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, एंड एनीवन कैन एंटर द डेटा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत इजी प्रोसीजर है और बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। तो वी कलेक्टेड ऑल द डेटा एंड वी एंटर्ड and instantly certificates were generated. We printed the certificates. We felicitated 16 teachers of 16 different schools of our area. Out of those, 4 were of ZP schools, other were some municipal schools, some government aided schools like those. तो टोटल मिला के हमने 16 schools के teachers को ये award दिया है, and it was a very good experience. So teachers were also very happy. इवन प्रिंसिपल्स वर आल्सो हैप्पी कि उनके स्कूल को रिकॉग्निशन मिल रहा है। और जब हमने उन्हें बताया कि ये आपको लोकल लेवल पे नहीं है, तो नेशनल लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, और सर्टिफिकेट पे अपने डिस्ट्रिक्ट के डीजी आनंद सर, RILM के चेयर कमल संघवी और RI डायरेक्टर्स, इन सब की जब सिग्नेचर आती है और उसके साथ क्लब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर आती है, तो दिस बिकम्स एन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल सर्टिफिकेट। तो टीचर्स को भी प्राउड फीलिंग होती है और इट्स प्राउड फीलिंग फॉर स्कूल आल्सो। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सिर्फ वेबसाइट का थोड़ा सा ग्लिच ऐसा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट अपलोड अभी ऑप्शन आया नहीं है आपका, तो वी कुड नॉट अपलोड द फोटोग्राफ्स, और वो जो प्रोजेक्ट अपलोड फॉर्म जो है वी कुड नॉट अपलोड दैट फॉर्म। बाकी तो डाउनलोडिंग तक तो इट्स वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन अपलोडिंग का प्रोसीजर अब तक वहाँ पे वेबसाइट पे आया नहीं है। तो it was a good experience. Every club should implement it. And once again, thank you very much, राकेश सर। सबसे पहले ये तो राकेश सर ने ग्रुप में डाला था ये पूरा जो PPT है या डॉक्यूमेंट्स है, तो वी फॉलोड दोज डॉक्यूमेंट्स, एंड हमारा क्लब रजिस्टर्ड नहीं था तो वी रजिस्टर्ड आवरसेल्व्स, एंड देन वी फॉलोड ऑल द प्रोसीजर। So it was relatively easy procedure, not that difficult. So every club should follow it, and thank you very much for letting me speak to this august audience. And just that concern needs to be addressed, the concern of uploading project. Thank you very much. Yes. Thank you, Makaran ji. Thank you for your share your experience. और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मकरन जी, और एक बात कि आपका प्रोग्राम अगर हुआ होगा तो प्लीज फोटोग्राफ शेयर कीजिएगा ग्रुप में। जिनके यहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं तो फोटोग्राफ अगर शेयर करते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में शेयर किए, डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में शेयर किए, और आज मीडिया कवरेज भी बहुत अच्छे से आया तो प्रोग्राम का, तो मीडिया कवरेज के भी फोटोज मैंने अपलोड किए डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में, प्रोजेक्ट एंड इवेंट्स के ग्रुप में। संगीता मैम, वन मोर पॉइंट।
या प्लीज। ये जो नेशन बिल्डर्स अवार्ड है कि हम तो लिटरेसी मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 सितंबर इंडिया के रेफरेंस में टीचर्स डे वेरी इंपॉर्टेंट डे है, देन 8 सितंबर इज International Literacy Day. These are the good occasions, but these awards can be given throughout the year. That is an ongoing process. Yes. Yes, yes. ये साल भर दे सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये साल भर हम कर सकते हैं, बट ये जो मंथ है, जो लिटरेसी मंथ है, उसी मंथ में अगर हमें प्रोग्राम करें तो ज्यादा उसका जो मतलब मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस स्कूल्स में भी जनरली 5 सितंबर ये टीचर्स डे मनाया जाता है, तो ये माहौल होता है और हमारे रोटरी के लिए भी एक लिटरेसी मंथ होता है, तो इस मंथ में करें तो ज्यादा बेटर, बट हम साल भर पे भी ये कर सकते हैं। yes, बिल्कुल। और कोई है जो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चंस है? मैडम एक रिक्वेस्ट थी जी। जैसा अभी जैसा ये कि टीचर्स डे के दिन ही अवार्ड दिए जाने चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये भी सही है कि साल भर में दिया जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेसी मंथ के अंदर। क्वेश्चन कि कई बार फिर क्लब्स ये सोचते हैं कि चलो 10-12 आगे कर दो, एक प्रोग्राम हो जाता है, अपना एक प्रोजेक्ट हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी जो मेन फोकस है कि मैक्सिमम टीचर शुड बी कवर्ड, जो भी है वो, जहां तक उनको अपन सही तरीके से जाके एक ही फंक्शन हम ले, क्योंकि 2-3 फंक्शन ले सकते हैं हम कि चलो अब 10 आ गए, फिर एक अवार्ड फंक्शन लिया, और फिर 10 आया, फिर अवार्ड फंक्शन लिया। क्लब से ये होनी चाहिए कि विद इन दिस मंथ आप मेक श्योर आपके पास सही एक सब डेटा है और एक साथ आप मैक्सिमम टीचर्स कवर का प्रयास करो, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अदरवाइज सब ऐसे जल्दबाजी में हो जाती है कि 5 सितंबर है, चलो अभी कुछ क्लब ये भी सोचेंगे कि कल के दिन किसी तरीके से हो जाना चाहिए, तरीके से, मतलब देन फिर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती उसकी जो डिग्री वो हम मेंटेन। ज्यादा से ज्यादा स्कूल कवर हुए, यस, और उन तक सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी जाए, ये उसका इम्पोर्टेंस है, उनका अटेंडेंस है, ये सब चीजें एक प्रॉपरली तरीके से होना चाहिए। मंथ के अंदर ही करें हम, ये बेटर रहेगा। राजेश जी, आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है। अभी कैसा ये जो होल मंथ लिटरेसी मंथ जो होगा, तो इसमें क्या करना चाहिए कि प्राइमरी यूजी टू पीसी जो हमें काम करना है ना, यूजी ग्रांटेड स्कूल होगी, नॉन ग्रांटेड स्कूल होगी, यूजी होगा, अंडर ग्रेजुएट होगा, पीजी होगा, इसके ऊपर हमारा रोटरी का ऐसा करना चाहिए कि ये मेरे हिसाब से कि ये पूरा मंथ जो रहेगा ना, 11th मंथ हम सोशल वर्क 100% करेंगे, लेकिन लिटरेसी मंथ जो होगा ना, तो वो पूरा सितंबर महीना जो रहेगा, तो उस पर फोकस करो। वो सितंबर महीने में कोई दूसरा प्रोजेक्ट ही नहीं होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट होंगे ना वो बच्चों के लिए होना चाहिए, टीचर के लिए होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। जी जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर दिलीप भावसा जी, आप कुछ बोलना चाहते प्लीज? हाँ, ये अनुभव ऐसा है मैडम कि जो अवार्ड दिए जाते हैं मैक्सिमम इन रोटरी, व्हाट यू हैव सीन, वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बीच में से सिर्फ लोगों को अवार्ड देते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अवार्ड देना ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेस कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग रोटरी को बोलते हैं कि तुम कुछ किसको भी अवार्ड दे रहे जी, जो अपना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आई नो। इनरव्हील ने 2-3 साल बहुत अच्छा काम किया था, और जो प्रोसेस से किया था, डॉक्टर अलका भावसर मेरी मिसेज जो है पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वो चेयरमैन थी, तभी उन्होंने देखा था कि बराबर किए थे। रोटरी में बहुत सारे अवार्ड दिए थे कि ये बस देने का इसलिए दिए, नाम ले लिए, पहचान लोगों को दे दिए, प्रोसेस कंप्लीट नहीं की थी। तो जस्ट आई वांट टू जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोसेस कंप्लीट करो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं दिलीप जी आप, इसीलिए हमने आज जो मीटिंग ली है ताकि हम प्रॉपर प्रोसेस से जाए, जिस तरीके से बताया गया है कि स्कूल में स्टूडेंट्स मार्क्स दे और कोई जो वहाँ पे सिग्नेटरी पर्सन है वो मार्क्स दे, उसके हिसाब से डिजर्व जो कैंडिडेट है या डिजर्व टीचर्स है उनका ही नाम बाहर आए और उनको ही हम अवार्ड दे, तो उनको ही रिकॉग्नाइज करें। तो उसी के लिए ये शायद ये सारी प्रोसेस है, और हम उसी प्रोसेस से अगर जाए तो डिजर्व व्यक्ति के साथ हम अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करके अवार्ड हम दे सकते हैं। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे रोटरी में जहाँ पे भी हो रहा है, तो ये इसमें अगर हमें चेंजेस लाना है
तो हम जितने भी चेयर है यहाँ पे, कमिटी चेयर्स है, उन्होंने अगर हर प्रॉपर वे से हमारे रीजन में जितने भी क्लब्स है उसको लेके प्रॉपर वे से अगर हम उनको संगीता जी आवाज नहीं आ रही करना चाहते हैं। संगीता जी आवाज कट हो रहा है। अभी आ रही है? हाँ जी। और कोई है जो बात करना चाहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ हाँ समाप्त कीजिए। जी जी। और कोई है बात करना चाहते हैं? नो 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 कंप्लीट। ओके, सो आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, और कुछ अगर बातें रही तो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और जहां जरूरत है तो हम मिलते रहेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने अभी ये समाप्त करना चाहिए मीटिंग। हमारे डीजी डॉक्टर झुनझुनवाला, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने टाइम निकाल के हमारे मीटिंग में वो आए। आशा वेणुगोपाल जी, उनको धन्यवाद करना चाहूंगी। राकेश जी और मनोज जी और राजेश जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे जो कमेटी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित है उनको भी बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और आज की मीटिंग खत्म हुई, समाप्त हुई, ऐसा मैं मानती हूँ। और अगर फेलोशिप करना है जी, प्रसाद जी अग्रवाल, उन्होंने पूरी ये मीटिंग जो है जूम मीटिंग अरेंज की, उनका धन्यवाद। और साथ में संगीता जी, आपने पूरी मेहनत से और पूरे ग्रुप को जो है जोड़ा, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू राकेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय।